Good afternoon students, welcome to today's video lecture of 3D geometry. In the last class, we had finished the theory of the direction cosines of a line passing through origin जहाँ पे any point on the line था p, x, y, z. तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि a line has two directions. A line has two directions और आपको याद रखना है a vector has only a vector is a ray. A vector is a ray having only one direction. Is a ray having only one direction. फिर हमने क्या रखा था कि लाइन L पे दो पॉइंट्स थे. सपोज लाइन L थी, उस पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स थे A और B. सो सपोज two distinct points A comma B. Suppose two distinct points A and B are on line L. तो direction of line L क्या था? Direction of line L is equal to direction of line L is given by is direction of line L क्या था? From A to B vector AB था. So direction of one direction of line L वो क्या होगा? A vector directed from A to B, that is vector ray AB. और second direction of line L क्या था? Vector directed from B to A, which is ray BA, which is minus AB. So a line has two directions. So therefore first direction of line L क्या है? क्योंकि vector directed from A to B, which is ray AB. So therefore two directions. Therefore directions of line L, वो हो जाएंगे प्लस और माइनस AB. ये आपको पता था. फिर हमने क्या किया था? डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज. खाली पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. अब आपको ज्यादा जो भी डिटेल में थियरी की थी, उस थियरी में से आपको खाली इतना ही याद रखना है. फिर मैंने आपको क्या बताया था कि a line L is passing through origin and p x y z is any point on the line L. याद है आपको? तो हमने क्या लिखा था? तो आपको याद रखना था कि a line L in 3D or R3 is passing through origin O00 and any point on and P000 3D में 0 0 0 and pxyz and pxyz is any point on line L and pxyz is any point on line L. आपको याद है? और हमने उसके डायरेक्शन एंगल्स क्या रखे थे? सो हियर फॉर O000 फॉर, फिर हमने इस लाइन के डायरेक्शन एंगल्स क्या रखे थे? लेट अल्फा बीटा गामा बी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ लाइन L. इसका डायग्राम अभी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. सो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? सो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा are direction cosines of line L. यहाँ पे अल्फा बीटा गामा कहाँ बिलोंग करेंगे? क्लोज 0 to pi. तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि O क्या है? O00, P क्या है? XYZ. तो वेक्टर OP क्या हो जाएगा? R bar is equal to, हमने वेक्टर OP क्या रखा था? हमने वेक्टर OP. So for which is the point on the line O00, origin PXYZ is any point on line L. For O00 PXYZ on line L, vector OP वो था R bar. वो कितना आएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O, मतलब वो था XYZ और mod of OP which is equal to mod of R. वो हो गया था R which is equal to square root of x square plus y square plus z square. Now direction angles क्या है? अल्फा बीटा गामा. So here
alpha, beta, gamma belong to for direction angles. Now for direction angles, alpha, beta, gamma of line L of L. आपको याद है ये कहाँ पे बिलोंग करेंगे? अल्फा, बीटा, गामा दे बिलोंग टू क्लोज 0 to pi. इसका डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर देना. दैट इज वेरी वेरी क्लियर. अच्छी तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ. अब इसमें से डायरेक्शन कोसाइंस कैसे मिलेगी? डायरेक्शन कोसाइंस है cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा. तो cos अल्फा कैसे मिलेगा? x कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर OP. सो देयरफॉर cos अल्फा क्या था? cos अल्फा था x अपॉन r, x upon mod of OP vector. Sorry. So cos alpha, direction cosine cos alpha कैसे मिलेगा? X coordinate which is x upon mod r. फिर cos beta वो कैसे मिलेगा? Y coordinate upon mod r. और cos gamma वो आएगा z coordinate z upon mod r. तो cos alpha, cos beta, cos gamma आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? Cos alpha is x upon r. Cos beta will be the y coordinate of the vector upon the magnitude of the vector. So y by r and cos gamma is equal to z coordinate upon the magnitude z upon r. Z upon r. Okay. Now here can we correct? Cos alpha का notation था L, cos beta का notation था M और cos gamma था N. So L, M और N मिल गया. L, M और N मिल गए. So डायरेक्शन कोसाइंस आप ऐसे निकालेंगे. Therefore L क्या आएगा? x by r, m क्या आएगा? y by r और n डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा? z by r. ठीक है. अब आपको पता है कि लाइन के दो डायरेक्शंस हैं. तो अगर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L, अगर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L एलिमेंट है डायरेक्शन कोसाइंस अल्फा, बीटा, गामा, वो आपको पता चल गया. तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेगा? x कोऑर्डिनेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेगा? x कोऑर्डिनेट अपॉन मॉडुलस ऑफ द वेक्टर cos बीटा, y कोऑर्डिनेट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर cos गामा, z कोऑर्डिनेट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर OP. ठीक है. अब जरा याद रखो हमने क्या सीखा था कि अगर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ लाइन L क्या थे? ऑफ लाइन L they were alpha, beta, gamma. तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे लिखने का? सेपरेटेड बाय कॉमन. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L वो क्या आएंगे? cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा. वो हो जाएंगे एलिमेंट. तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L वो क्या आएंगे? L, M, N. A line has two directions. Can we recollect? A line has two directions. Line L. Now line L has two directions. So definitely direction angles. Second set of direction angles आप निकाल सकते हो. I minus alpha, pi minus beta, pi minus gamma. और मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? इसका अपोजिट. So minus cos alpha, minus cos beta, minus cos gamma. Actually cos of pi minus alpha, cos of pi minus beta, cos of pi minus gamma से हम निकाल. Therefore डायरेक्शन एंगल्स क्या हो जाएंगे? So डायरेक्शन एंगल्स, second set of direction angles of line L will be pi minus alpha, pi minus beta, pi minus gamma. और तब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L क्या आएंगे? माइनस cos अल्फा डायरेक्ट बता रहा हूं, माइनस cos बीटा, माइनस cos गामा. एक्चुअली cos of pi minus alpha, cos of pi minus beta, cos of pi minus gamma. और वो हो जाएंगे माइनस 11, माइनस L, माइनस N, माइनस N. ओके. सो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन सेकंड सेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L ऐसा है तो आप याद रखो दिस इज फर्स्ट सेट. This is the first set of direction cosines and this is the second set. Okay, ऐसा याद रखना है. Okay, so वो हो जाएंगे minus L, minus N, minus N. डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा. तो आपको याद रखना है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज 1. जहां पे अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स है और ये एलिमेंट के बेस पे आपको ये भी याद रखना है L square plus n square is 1. दूसरा डायरेक्शन रेशियोज को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोज
और डायरेक्शन कोसाइंस दे आर प्रोपोर्शनल। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाल सकते हैं? डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस में क्या फर्क है वो मैं आपको बताता हूं ना। दिस विल गिव अ यूनिक डायरेक्शन। डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो यूनिक होंगे, दो आएंगे एक लाइन के लिए, पर अगर आप किसी भी डायरेक्शन कोसाइन को एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्शन कोसाइन को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन रेशियो मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि डायरेक्शन रेशियो, दूसरा टॉपिक मैंने आपको सिखाया है, डायरेक्शन रेशियोज आर आल्सो कॉल्ड डायरेक्शन नंबर्स, आर आल्सो कॉल्ड डायरेक्शन नंबर्स। और हमने क्या किया था कि direction ratios are denoted by direction ratios or direction numbers. Direction ratios or direction numbers are denoted by direction numbers are denoted by A, B, C. तो आपको याद रखना है कि डायरेक्शन रेशियोज are proportional to direction cosaines. Direction ratios or direction numbers are proportional to direction cosines are proportional to direction cosines. तो ऐसे याद रखो डायरेक्शन ratios और डायरेक्शन नंबर्स को क्या कहते हैं? A, B, C direction ratios or direction numbers A, B, C are proportional to the direction cosines elements are proportional to the direction cosines element of line L। जनरल हम बता रहे हैं ऑफ लाइन L। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर डायरेक्शन रेशियोज A, B, C है, अगर डायरेक्शन रेशियोज A, B, C है तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे मिलेंगे? कैसे निकलेंगे? हमने L upon A is equal to L M upon B is equal to N upon C ऐसे करके K डिराइव किया था और वैल्यू लेके आए थे। कैन यू रिकलेक्ट? Since the direction ratios and direction cosines are proportional, तो हम लोग ने क्या रखा था? Therefore L upon A is equal to M upon B is equal to N upon C is equal to K। तो L upon K A आया था, M upon B K था, N upon C is equal to K, preferably K is not equal to 0। So N K हो जाएगा M, K B हो जाएगा N, K C हो जाएगा। Now आपको पता है L square plus M square plus N square क्या होता है? 1। तो K square A square plus K square B square plus K square C square is 1। K square कॉमन निकालो, K square आएगा 1 upon A square plus B square plus C square, so K हो जाएगा प्लस और माइनस 1 upon प्लस और माइनस 1 upon स्क्वायर रूट ऑफ A square plus B square plus C square। तो आपको L B L M और N मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ आपको डायरेक्शन कोसाइंस एलिमेंट मिल जाएंगे इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज के लिए। So therefore A square common A square plus B square plus C square is 1। therefore see आपने देखा कि बोथ थियरी आपको अच्छे तरीके से याद है तो ये चैप्टर आप आराम से खत्म कर सकते हो। यू मस्ट फिनिश द चैप्टर ऑफ वेक्टर अलजेब्रा अलोंग विद 3D। आप खत्म कर लो तो बहुत अच्छे तरीके से दोनों चैप्टर आपको परफेक्टली आ जाएंगे। ये पूरा यूनिट आपका हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A square plus B square plus C square। now here L क्या था? KA, M क्या था? KE, N क्या था? KC। डायरेक्शन कोसाइंस L M और N आपको मिल गए। so डायरेक्शन कोसाइंस L equal to M equal to N equal to are the direction cosines। clear? easily done। so therefore L is equal to L हो जाएगा प्लस और माइनस A अपॉन L हो जाएगा प्लस और माइनस A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ओके राइट ओवर देयर। K को सब्स्टिट्यूट करना है आपको और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L। तो L क्या हो जाएगा? अब आपको याद रखना है L हो जाएगा
डायरेक्शन कोसाइन इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्शन रेशियो ABC प्लस और माइनस a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर m कितना आएगा प्लस और माइनस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और n कितना आएगा n विल बी प्लस और माइनस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर फॉर लाइन L। तो आपको मान इतना याद रखना है कि अगर डायरेक्शन रेशियोज पता है ABC तो डायरेक्शन कोसाइंस ये हो जाएंगे। सो डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइंस एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ABC ऐसे आपको याद रखने हैं। तो उसका मतलब डायरेक्शन रेशियोज let ABC be given direction ratios or direction numbers of line L तो आपको डायरेक्शन कोसाइंस अगर निकालने हैं एलिमेंट अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस एलिमेंट निकालने हैं तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो फाइंड तो उसके लिए आपको याद रखना है फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड उसका स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो डायरेक्शन कोसाइंस L हो जाएगा प्लस और माइनस a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर m प्लस और माइनस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और n क्या आएगा प्लस और माइनस n विल बी प्लस और माइनस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आर डायरेक्शन cosines of line L direction cosines of line L direction cosines of line L। अब डायरेक्शन cosines of a line passing through यहाँ पे हमने किया डायरेक्शन cosine of a line passing through origin जहाँ पे xyz is any point on the line। अब डायरेक्शन cosine of a line passing through ये थियरी बहुत इजीली आपको आ जाएगी और अगर आपको ये चीज आ जाती है क्योंकि अभी ये मैंने पॉइंट्स आपको कराया है तो उसी के बेस पर है द नेक्स्ट थियरी डायरेक्शन cosines of direction cosines and direction ratios direction cosines and direction ratios of a line passing through two distinct points of a line passing through a line L passing through two distinct points passing through two distinct points in okay तो सपोज लाइन L है उस पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं सो मैं रखता हूं कि लेट A x1 y1 z1 एंड B x2 y2 z2 be two distinct points on line L तो लाइन के दो डायरेक्शंस होंगे ठीक है a line L is passing through two distinct points this is our line L it is passing through two distinct points A and B and here line L is AB तो डायरेक्शन फर्स्ट सेट डायरेक्शन ऑफ लाइन दो लाइन के दो डायरेक्शन होंगे लाइन के दो डायरेक्शन होंगे वेक्टर AB और दूसरा माइनस AB वेक्टर तो पहले रखता हूं फर्स्ट सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस में निकालता हूं और फिर मैं सेकंड सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस निकालूंगा फर्स्ट सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोस सेकंड सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोस सो ax y1 bx y2 z2 ax y1 z1 bx y2 z2 are two distinct points on line L तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट
लाइन L has two directions, तो डायरेक्शन ऑफ L मैं रख सकता हूं डायरेक्शन ऑफ लाइन L I can keep as vector directed from A to B, which is vector AB. Now here vector AB क्या होगा? Here vector AB क्या होगा? Position vector of B minus position vector of A, which will be x2 y2 z2 minus x1 y1 z1. आप डायरेक्टली लिख सकते हो. So vector AB will be x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1. अब आप mod of AB निकालो. अब आप mod of AB क्या आएगा? Therefore mod of AB vector which will be distance AB, mod of AB vector which will be mod of AB vector. So therefore vector AB, so therefore direction of line L is vector AB. Here vector AB is x2 minus x1 y2 minus 7 z2 minus z1. Therefore magnitude of AB will be square root of कैसे मिलेगा? x2 minus x1 the whole square, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square plus z2 minus z1 the whole square. अब आप क्या रखो? सपोज अल्फा बीटा गामा आप रखो डायरेक्शन कोसाइंस, आप डायरेक्शन एंगल्स रखो अल्फा बीटा गामा. लेट अल्फा बीटा गामा be the direction angles of line L. Let alpha beta gamma be the directions of line L passing through two distinct points A and B. तो आपको पता है cos alpha कैसे मिलेगा? Let alpha beta gamma be direction angles of line L passing through A x1 y1 z1, very important date now, and B x2 y2 z2. Here alpha beta gamma कहाँ belong करेंगे? Alpha beta gamma कहाँ belong करेंगे? Alpha beta gamma will belong to close 0 to 5. और डायरेक्शन कोसाइंस कैसे मिल जाएंगे? सीधा करके वहाँ पे लिखा हुआ है. So here alpha beta gamma belong to close 0 to 5. So for vector AB which is x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1, तो इधर डायरेक्शन ऑफ L क्या था? और हाँ इधर डायरेक्शन ऑफ L क्या हुआ? डायरेक्शन ऑफ लाइन L which is AB वेक्टर को हम लिख सकते हैं x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1. Correct? This is not equal wrong. So therefore for vector AB which is x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1, cos alpha कैसे मिलेगा? Can you recollect? Cos alpha कैसे मिलेगा? Cos alpha will be the x coordinate. Cos alpha will be x2 minus x1. So cos alpha will be x2 minus x1 upon mod of AB vector. Comma. Cos beta will be y2 minus y1 upon mod of AB vector, and cos gamma will be z2 minus z1 upon mod of AB vector. That you can write as directly. So आप डायरेक्टली लिख सकते हो mod of AB लिखो या डिस्टेंस AB लिखो तो भी चलेगा. डिस्टेंस AB रखो वो भी चलेगा. So therefore direction cosine से मतलब therefore direction angles of line L will be alpha beta gamma, and direction cosines of line L which is equal to line AB, line L equal to of direction angles of line L equal to AB. Suppose it is, so ये कितने होंगे? cos alpha, cos beta, cos gamma, and then you know आप लिख लो mod of AB vector आप रख सकते हो which is distance AB. You can also keep mod of AB vector और distance AB. जैसे मैंने लिखा है उन्होंने ओके mod AB की जगह पे AB रखा है, तो वो हो जाएंगे cos alpha, cos beta, cos gamma, and you can write as x2 minus x1 upon mod of AB vector with y2 minus y1 upon mod of AB vector, z2 minus z1 upon mod of AB vector, and
without AB also you can write x2 minus x1 upon distance between AB, y2 minus y1 upon distance AB, z2 minus z1 upon distance AB. ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज, one of the direction ratios which you can take is one of the direction ratios which you can take is x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. So direction ratios ये पहला सेट आ गया। So direction ratios of line L equal to AB वो हो जाएंगे R, क्या हो जाएंगे? पासिंग टू x y x टू y2 वो हो जाएंगे x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1। finished। that is the first part। ये हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ax y1 3x y2 and cx y2। अब लाइन हैज टू डायरेक्शंस, लाइन हैज टू डायरेक्शंस फॉर रिवर्सिंग। तो दूसरा डायरेक्शन एंगल्स क्या होंगे? y माइनस अल्फा, y माइनस बीटा, y माइनस गामा। और दूसरा इसका रिवर्स है। तो a line has two directions, so a line L, now here line L, now here line L is equal to AB has two directions, so that line में दो directions हैं, x2 माइनस AB है तो BAB है, तो उस लॉजिक से भी हम कर सकते हैं। so reversing, सिंपल लिख रहा हूं reversing। So for direction, so second direction, second set में लिख रहा हूं, second set में direction of line L equal to AB, आप रखो वेक्टर BA या माइनस AB, yes माइनस AB, सीधा लिख दो। line has two directions, a line L has two directions, वेक्टर AB के लिए ये रखा है। तो for direction now second direction of line L आप क्या रख सकते हो? second direction of line L, second direction of line L जो इक्वल टू AB था वो क्या है? BA वेक्टर जो था माइनस AB। so for here A क्या था? here A क्या था? x1 y1 z1, B क्या था? x2 y2 z2। तो आप खाली ये वेक्टर निकाल दो, आपको मैग्नीट्यूड और पूरा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर पहला सेट आपको पता है तो दूसरा उसका अपोजिट होगा जो अभी मैंने आपको सिखाया था। तो अब डायरेक्शन एंगल्स तो अल्फा बीटा गामा है, तो सेकंड सेट में आएगा सेकंड डायरेक्शन ऑफ लाइन L will be A which is minus AB, so vector BA which is minus AB, तो वेक्टर BA डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा? वेक्टर BA will be x1 minus x2 y1 minus y2 और z1 minus z2। इस केस में डायरेक्शन एंगल्स क्या हो जाएंगे? अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स में, तो डायरेक्शन एंगल्स हो जाएंगे पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा। और दूसरा डायरेक्शन कोसाइंस क्या मिलेंगे? जो पहला डायरेक्शन था उसका अपोजिट कंसीडर करने का मतलब माइनस के साथ। सो रिवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ लाइन L is equal to AB, तो उसके सेकंड सेट ऑफ डायरेक्शन एंगल्स क्या होंगे? डायरेक्शन एंगल्स ऑफ लाइन L इक्वल टू AB क्या आएंगे? अगर पहले है अल्फा बीटा गामा तो सेकंड होंगे पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, और तीसरा होगा पाई माइनस गामा। और सेकंड में उसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस क्या रखोगे आप? यहाँ पे वेक्टर क्या है? AB, तो BA या जो पहला था उसका आपको अपोजिट कंसीडर करना पड़ेगा, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L इक्वल टू AB क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L विल बी कितने होंगे? अगर आप वो रखते हो LMN मतलब इसके अपोजिट होंगे cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, उसके अपोजिट, तो वो क्या हो जाएंगे? आपको याद रखना है उसके डायरेक्शन कोसाइंस विल बी -L -L -L
L minus n which is equal to minus cos alpha minus cos theta minus cos gamma, तो वो अल्टीमेटली कितना आएगा x1 minus x2 अपॉन मॉड ऑफ BA, फिर आएगा y1 minus y2 अपॉन मॉड ऑफ BA और z1 minus z2 अपॉन मॉड ऑफ BA, और मॉड ऑफ BA को आप क्या सोच सकते हो डिस्टेंस BA, so that will be x1 minus x2 upon BA, y1 minus y2 upon BA, z1 minus z2 upon BA, और उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज इधर जो सेकंड डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ लाइन L जो था BA माइनस AB, डायरेक्शन यहां पे हमने क्या रखा है डायरेक्शन ऑफ लाइन L which is equal to AB is equal to क्या था, हमने रखा था BA वो BA is minus AB वेक्टर, और वो कितना आया था x1 minus x2 y1 minus y2 z1 minus z2, तो without this modulus BA is in the denominator, so therefore you can write second set of direction ratios of line L equal to AB will be क्या x1 minus x2 y1 minus y2 z1 minus z2 x1 minus x2 y1 minus y2 और z1 minus z2. So this is the theory of the direction cosines and direction ratios of a line passing through two distinct points. तो सीधा क्या रखना है कि suppose line L is passing through two distinct points A क्या है x1 y1 z1 and B x2 y2 z2, तो आपको दो सेट में जो याद रखना है वो मैं लिख देता हूं सीधा कि सबसे पहले a line L is passing through two distinct points, line L is passing through two distinct points A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2 and B x2 y2 z2. आपको खाली याद रखना है, yes you have to remember okay a line is passing through two distinct points, line L is passing through two distinct points A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2, so line L is something like this. This is line L and it is passing through two distinct points A and B. So directions of line L which is equal to AB, वो क्या था डायरेक्शंस ऑफ लाइन L क्या था प्लस और माइनस AB वेक्टर, प्लस और माइनस AB वेक्टर, तो आपको याद रखना है कि डायरेक्शंस ऑफ लाइन L which is equal to line AB which is equal to plus और माइनस AB वेक्टर, और आपको खाली याद रखना था कि लेट अल्फा बीटा गामा बी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ लाइन L, अगर डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा है, सो हियर अल्फा बीटा गामा बिलोंग टू क्लोज्ड 0 to pi, तो आपको सारे डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज भी याद रखने हैं. अगर लाइन हैज टू डायरेक्शंस AB वेक्टर और माइनस AB वेक्टर, तो हो गया, तो आपको सीधा याद रखना है कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, cos अल्फा cos बीटा cos गामा नहीं, आपको सीधा याद रखना है कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन passing through directions. Suppose the line L is passing through two distinct points A and B x y to z2, और अल्फा बीटा गामा उसके डायरेक्शन एंगल्स हैं, जहां पे अल्फा बीटा गामा बिलोंग टू 0 to pi, तो फर्स्ट सेट डायरेक्शन कोसाइंस
ऑफ L इज इक्वल टू लाइन AB R, आपको याद रखना है R x2 minus x1 upon mod of AB, I will prefer this one, y2 minus y1 upon mod of AB and z2 minus z1 upon mod of AB। दो बार लिखो तो अच्छी तरीके से लर्न होगा और डायरेक्शन रेशियो लिखो। फिर दूसरा क्या आएगा, दूसरा होगा प्लस और माइनस में है तो फिर रिवर्स कर देगा और डायरेक्शन ratios of line L which is equal to AB R, वो आएंगे x2 minus x1, y2 minus y1 और z2 minus z1। और सेकेंड सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे और डायरेक्शन कोसाइंस वो आएंगे, खाली ऊपर में माइनस देना है तो कितना आएगा x1 minus x2 upon mod of AB और दूसरा आएगा y1 minus y2 upon mod of AB और तीसरा आएगा z1 minus z2 upon mod of AB। इतना भी आपको याद रखना है। और सेकेंड सेट में डायरेक्शन कोसाइंस, सेकेंड सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, और हाँ इधर आप नोट करके लिखो वेक्टर AB is x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 and वेक्टर VA जो था माइनस AB वो था x1 minus x2, y1 minus y2 और z1 minus z2। तो now you know the second set of direction cosines क्या होगा, second set of direction cosines of line L is equal to AB। कैसे मिलेंगे, passing through two distinct points x y z और x y z, क्या आएगा x1 minus x2 upon mod of AB, or you can write distance में भी also y1 minus y2 upon mod of AB and z1 minus z2 upon mod of AB। और दूसरा डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे x1 minus x2, y1 minus y2, z1 minus z2। इतना ही आपको ये जो सेकंड पॉइंट अभी मैंने लिखा और एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में, आज के स्टार्टिंग के लेक्चर में जो मैंने आपको सिखाया उतना ही आपको नॉलेज होना चाहिए, तो आपको आराम से पहली एक्सरसाइज आ जाएगी। और लाइन L इज इक्वल टू AB R, क्या आएंगे x1 minus x2, y1 minus y2, z1 minus z2। Now let us do the exercise and try to finish off exercise। और अगर ऐसा होगा तो what I will do is that उसके एप्लीकेशन के जो एग्जांपल्स हैं, अगर मुझे लगता है कि मुझे वो करने चाहिए, इजी है, तो I will do it, otherwise I will just finish it off very fast, okay। और हाँ आप याद रखो ये सारे जो छोटे क्वेश्चंस हैं that can come as 1 mark MCQ in your board exams or it can come as 1 mark question in your group set। आपको अलग से कुछ भी, अगर आप खाली टेक्स्ट बुक भी करते हो और आपको पता है कि उसके 1 मार्क के क्वेश्चंस कौन से हैं, then you can easily get all the answers। Now let me do the exercise 11.1। let us start with exercise 11.1। now a line makes angles with x-axis, find its direction cosine। question number 1, let alpha, beta, gamma be direction angles of given line L। पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं of given line L। so alpha क्या होगा, angle made by the line, angle between the line and positive x axis। beta क्या होगा, angle between the line and positive y axis। gamma होगा direction, alpha beta gamma are the direction angles of line L। मैंने रखा है alpha क्या होगा, angle between the line and positive x axis। तो इधर alpha कितना दिया हुआ है, alpha angle between the line and x axis कितना है 90 डिग्री, बीटा कितना दिया है, angle between the line and the positive y axis 135 डिग्री, और गामा क्या होगा, angle between the line and the positive z axis which is 45 डिग्री। तो ये जो alpha है वो होगा 90 डिग्री मतलब pi by 2, बीटा is 3 into 45 डिग्री which is 3 pi by 4 और गामा is pi by 4। और उन्होंने पूछा है
फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस तो आपको पता है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L आर क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L क्या होंगे, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। तो कितना आएगा, cos ऑफ पाई बाय 2, cos ऑफ 3 पाई बाय 4, cos ऑफ पाई बाय 4। तो कितना आएगा आंसर। सो एलएमएन में नहीं रखता हूं, मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूं। सो डायरेक्शन कोसाइंस की जो है cos by 2 is 0, cos of 3 by 4 is minus 1 by root 2 and 1 by root 2. Let me check the answer. 0 minus 1 by root 2, 1 by root 2. Note, a line has two directions. A line has two directions. So उस लॉजिक से डायरेक्शन कोसाइंस इसका अपोजिट भी हो सकता है। तो 0 1 by root 2 minus 1 by root 2 भी ऑप्शन में हो सकता है एमसीक्यू एग्जाम में। मतलब if this is not the answer, a line has two directions, तो second direction cosines, so DC of similarly, or you can say direction cosines of L can be direction cosines of L can be R, direction cosines of L R का opposite मतलब 0 1 by root 2 और minus 1 by root 2। ये भी आंसर हो सकता है। Then we can finish. Okay, so that is the first one. Second question देखो, second question क्या है, find the direction cosine of a line which makes equal angles with the coordinate axis. Okay, equal angles with the coordinate axis, angles made by, okay, question number 2, suppose alpha beta gamma are direction angles of line L, are direction angles of line L. So alpha is the angle made by the line with positive x-axis, beta is the angle between the line and the positive y-axis, gamma is the एंगल बिटवीन द लाइन L एंड पॉजिटिव z एक्सिस। तो वो आपको समझाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब लेट अल्फा बीटा गामा बी द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द लाइन L। इसका मतलब अल्फा इज द एंगल बिटवीन द लाइन L एंड x एक्सिस, बीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द पॉजिटिव y एक्सिस, गामा इज द एंगल बिटवीन द लाइन L एंड द पॉजिटिव z एक्सिस। सो देयरफॉर आपको पता है हियर क्या दिया हुआ है, हियर इक्वल इंक्लाइन, हियर L इज, हियर L is क्या लिखा हुआ है, here L makes equal angles, here L makes equal angles with coordinate axis, ये स्टेटमेंट अगर आप न लिखो तो भी चलेगा। मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। नाउ आपको पता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos square gamma क्या होता है 1। so therefore cos square alpha, so alpha ही रखो, so cos square alpha बीटा की जगह पे alpha लिखो, cos square alpha plus cos square alpha is 1, so 3 times cos square alpha 1। तो cos square alpha क्या आया 1 by 3, so cos alpha कितना आया plus or minus 1 by root 3। ओके, अगर ये सब्जेक्ट में 2 मार्क के लिए आता है, आपका पूरा आंसर सही है, but they can cancel your marks if you are not writing one thing. What? Alpha, beta, gamma. Alpha is equal to beta is equal to gamma. So cos square alpha is this, where alpha, beta, gamma belong to close 0 to pi. So therefore cos alpha will be plus or minus 1 by root 3. ये alpha is equal to beta is equal to gamma. So therefore cos alpha is equal to cos beta is equal to, because cos is 1 close 0 to 5, so cos alpha will be equal to cos beta is equal to cos gamma, वो हो जाएगा, so cos alpha is equal to cos beta is equal to cos gamma is equal to plus or minus 1 by root 3. So therefore direction cosines of L are is
कितना होगा cos अल्फा cos बीटा cos गामा, so plus or minus 1 by root 3 plus or minus 1 by root 3 plus or minus 1 by root 3, इससे बड़ी आंसर है plus or minus 1 by root 3। हाँ, और अगर आपको इसके दो आंसर लिखने हैं तो पहला प्लस तीनों प्लस cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा है, तीनों प्लस या तीनों माइनस। एग्जाम में हो सकता है अगर ये आंसर ना हो और उन्होंने कोई दिया हो तो आपको चार आंसर नहीं मिलेंगे, लाइन के दो डायरेक्शन होते हैं, तो नोट करके रखने का कि फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L वो क्या है क्लास में, मतलब तीनों 1 by root 3 1 by root 3 1 by root 3 और सेकंड सेट होगा -1 by root 3 -1 by root 3 -1 by root 3। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन इज इन द वेक्टर अलजेब्रा वाला exercise miscellaneous which I have left। Direction cosines of line L will be -1 by root 3 -1 by root 3 -1 by root 3। Now you can easily finish off many 3 to 4 questions which I have left in vector algebra। So that is question number 2 done। Question number 3 देखते हैं। A line has direction ratios, okay, find its direction cosines। Let ABC be direction ratios of line L। मेथड याद है आपको, तो A कितना दिया हुआ है, A is -18, A is -18, B is 12 और C is -4। तो अगर डायरेक्शन कोसाइंस एलिमेंट है तो कैन यू रिकलेक्ट L क्या था +-a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, n था +- b अपॉन, तो डायरेक्शन कोसाइंस एलिमेंट विल बी +- लेट ABC be the direction ratios और डायरेक्शन नंबर्स एंड एलिमेंट be the direction cosines। ऐसा लिखो तो एक रिजल्ट आपको मिलेगा ABC के डायरेक्शन ratios and element B ratios and element B direction cosines of line L। तो आपको पता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज, L क्या आएगा +/- a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, n क्या था +/- b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और n क्या था +/- c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हियर ABC दिया हुआ है, हियर a is -18, b is 12, a is -18, b is 12, sorry, b is 12, c is -4, c is -4। सबसे पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, प्रोडक्ट डायरेक्टली -18 का स्क्वायर 324। इन CBSE school exam no calculators are allowed, so in GCET calculators are allowed and in Gujarat board exam calculators are allowed, so CBSE students please don't use calculators। I will suggest the same thing for Gujarat board students also। a square plus b square plus c square हो जाएगा 324 plus 144 plus 16, so that is a square plus b square plus c square is equal to 144 plus 16 is 160, so it is 484, so 324 it is 18 square 18 into 18 confirm plus 144 plus 16 484 का square root 24 था, yes, तो square root of therefore square root of a square plus b square plus c square is square root of 484, positive root only, so therefore अगले का 1 मार्क क्वेश्चन है, therefore square root of a square plus b square plus c square हो जाएगा 22। ना a कितना था 18, अरे -18 था, a था -18, b था 12 और c था -4। तो डायरेक्शन कोसाइंस व्हाट आई विल प्रिफर, डू नॉट राइट प्लस और माइनस एंड ऑल दैट स्टफ। आप पहले में रखो a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और दूसरे में माइनस रखो, देन विल बी बेटर वे ऑफ राइटिंग। सो फर्स्ट केस डायरेक्शन कोसाइंस
first case, see the way I am writing, that is very easy, you will not commit the mistake. So direction cosines first, direction cosines of L are of L is equal to, can you recollect, L M N, पहला क्या था L प्लस में a upon square root of a square plus b square plus c square, b upon square root of, ऐसे लिखो तो बेटर है, और ये वन मार्क क्वेश्चन है, c upon square root of a square plus b square plus c square. So और सेकंड में क्या करने का, सीधा उसका ऑपोजिट कर देने का, तो कोई मिस्टेक ही नहीं होगी. तो पहला शांति से करो, दूसरा ऐसा अगर कोई इलस्ट्रेशन है आई विल सॉल्व इट सो दैट इसका एप्लीकेशन आपको आ जाएगा. सो नाउ a कितना है -18, सो -18 upon 22, फिर है a is -18 12 upon 22, and the answer is -4 upon 22. Now what time is it cancel? No, they have cancelled. Cancel करो. So -9/11, फिर 6/11, and then -2/11. -9/11, 6/11 and -2/11. पर -8 होना चाहिए, तो दूसरा डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा, -8 अपॉन रूट ऑफ इसका c². फिर -11 ऐसे करके भी आप कर सकते हो, बट व्हाट आई विल सजेस्ट कि फर्स्ट आ गया, फर्स्ट आपको आ गया तो सेकंड डायरेक्शन कोसाइन आप सीधा लिखोगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L इज इक्वल टू, सीधा ये प्लस में लिखो और फिर माइनस में ले लो. 11 दिखा L M N, और दूसरी वैल्यू क्या थी, -8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a square plus b square plus c square minus b upon square root of a square plus b square plus c square, और minus c upon square root of a square plus b square plus c square. सब्स्टिट्यूट करो, आ गया आंसर. सो या फिर पहला आंसर आ जाने के बाद सीधा माइनस से मल्टीप्लाई कर देने का. सो माइनस ऑफ -18, -22, माइनस ऑफ 12 अपॉन 22, माइनस ऑफ -4 upon 22. सब्जेक्ट में दो मार्क के आते हैं, ऐसा लिखना है. सो इट इज 18/22, -12/22, 4/22, which is equal to 9/11, -6/11, और तीसरा है 2/11. अब देखो एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट, -9/11, 6/11, -4 प्लस माइनस, परफेक्ट. ओके, ना 2 मार्क्स के लिए आता है, इतना लिखना पड़ेगा. 1 मार्क के लिए भी अगर आ सकता है तो सीधा लिखो डायरेक्शन रेशियोज ABC. आपको पता है डायरेक्शन रेशियोज का सिंबल क्या होता है, ABC. डायरेक्शन कोसाइन LMN. तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन LMN. अब आपको याद रखना है कि अगर डायरेक्शन रेशियोज ABC है तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, a upon a square b square c square. ओके, यू लेट मी डू वन मोर रेशियो. ऐसा है Okay, now example number 2 देखो आप. Example number 2 देखो आप. Just 1 minute. Example number 2 देखो आप. Direction, if a line has direction ratios ABC. So direction ratios क्या होते हैं? Direction ratios ABC बोलते हैं. तो example number 2 में ABC here. Okay. Let ABC be direction ratios and element in the direction ratios of line L. Okay, so therefore A कितना दिया है, A is 2, B is -1 and C is also -2. तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए आपको सीधा याद रखना है a square plus b square plus c square निकालो. a square plus b square plus c square, 2 square 4 minus 1 square 1 plus 2 square 4. So a square plus b square plus c square आया. So therefore square root of a square plus b square plus c square आया 3. अब सीधा आंसर लिखेगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L. प्लस और माइनस करके करो, या फिर आई विल प्रेफर a अपॉन और फिर प्लस a अपॉन, so just what I am going to do,
Right, so direction cosines of L वो आएंगे, सीधा लिखो a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखो ये जो थियरी है इसकी NCERT बुक में, that theory is totally opposite of the theory which was given in the old Gujarat बोर्ड टेक्स्ट बुक। सारे नोटेशंस अलग है, सारी थियरी उल्टी पुल्टी है, तो मैं भी आपके साथ ही काम कर रहा हूं। तो a अपॉन a कितना है 2 अपॉन 3, फिर b कितना है -1, सो -1/3 और c कितना है -2, सो -2/3। और आप डायरेक्टली लिख लो सेकंड में इसका अपोजिट, तो ये फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन है और सेकंड में लिखो डायरेक्शन कोसाइंस विल बी हाउ मच -a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a square plus b square plus c square minus b upon square root of a square plus b square plus c square minus c upon square root of a square plus b square plus c square। अब आपको डायरेक्टली लिखना है तो इसका ऑपोजिट लिखो, टीचर विल गिव यू given it is for 2 marks, ओके। इट इज अ 1 mark क्वेश्चन तो आप स्किप कर सकते हो, और अगर 2 मार्क में है और आप इतना लिखते हो तो टीचर विल गिव यू रॉन्ग, इसका ऑपोजिट -2/3 1/3 और 2/3। पहला अगर सेकंड है तो इसका ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। लेट मी चेक द आंसर इन इलस्ट्रेशन। 2/3 -1/3 -2/3, तो सेकंड हियर होगा -2/3 1/3 एंड 2/3। परफेक्ट, ओके। नाउ लेट मी फिनिश एग्जांपल 2 मैंने कर दिया, तो फिर अब आपको मिस्टेक नहीं होगी। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. Show that find direction cosines for the sides of the triangle whose vertex is okay. Suppose triangle ABC है। Suppose triangle ABC है। So in triangle ABC let A रखो आप, A you keep as 3 5 4, B you keep as -1 1 2, C you keep as -5, फिर -5 और -2। अब उन्होंने पूछा है फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स, मतलब AB BC और CA तीन साइड्स हैं, तो मैं कैसे करता हूं? मैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो पहले AB फिर BC और फिर CA करेंगे, और आपको पता है वो कैसे निकालना है। तो थियरी आपको याद होनी चाहिए। पहले तो वेक्टर AB निकालो, पहले क्या करने का, वेक्टर AB निकालो। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अगर मुझे निकालना है तो मेथड समझ लो, और एक ही चीज को हमको 3 बार करना है। तो पहले फॉर साइड AB What is vector AB? Vector AB क्या होगा? B minus C plus -1, so -4 1 -4 is -4 -2। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ AB निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ AB निकालो, वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर 16 प्लस -2 का स्क्वायर 4 which is square root of 36 which is 6। तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ AB है which is 6, और आपके पास वेक्टर AB है कितना, ध्यान से -4 फिर 1 -4 और 2 -4 is -2। तो डायरेक्शन कोसाइन सीधा लिखने का, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन AB। कैन यू रिकलेक्ट डायरेक्शन कोसाइंस कैसे मिलते हैं? x कोऑर्डिनेट अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, सो -4/6 फिर -4/6 और फिर आएगा -2/6, तो वो कितना हो जाएगा -2/3 -1/3 और -1/3। पहला आएगा फिफ्थ क्वेश्चन में 3 5 4
5 minus 4 b is minus 1 1 2 minus 1 1 2 1 c is minus 5 minus 5 minus 2 मतलब एक वेक्टर गलत आया minus 1 minus 3 minus 4 1 minus 5 मतलब 2 plus 4 6 हो जाएगा सॉरी तो फिर उसका स्क्वायर रूट आप करेंगे तो कितना आएगा सॉरी फॉर द मिस्टेक ये आएगा 16 plus 16 plus 36 तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 32 plus 36 36 plus 32 वो होता है 68 square root of 68 which is square root of 4 into 17 वो आया 2 root 17 so mod of AB sorry देखो एक मिस्टेक आंसर इज रॉन्ग 2 root 17 और वेक्टर AB क्योंकि मैंने गलत पार्ट लिखा है -4 का होगा -4 6 तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगी x कोऑर्डिनेट -4 अपॉन 2 रूट 17 आपको पता है ठीक है तो पहला अगर आप उसने खाली डायरेक्शन कोसाइन पूछे हैं डायरेक्शन रेशियोज नहीं पूछे हैं तो जितना पूछा है उतना ही -4 x कोऑर्डिनेट अपॉन द मैग्नीट्यूड 2 रूट 17 फिर y कोऑर्डिनेट -4 अपॉन 2 रूट 17 z कोऑर्डिनेट 6 अपॉन 2 रूट 17 कैंसिल कर दो तो आएगा आंसर -2 अपॉन रूट 17 -2 अपॉन रूट 17 और 3 अपॉन रूट 17 ये पहला आया फर्स्ट डायरेक्शन सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइन सेकंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन AB क्या आएंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन AB क्या आएंगे एग्जैक्ट इसके अपोजिट मतलब 2 अपॉन रूट 17 डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओके इधर में ये ट्रायंगल थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर देता A B C डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन AB क्या आएंगे इसके एग्जैक्ट अपोजिट तो 2 by root 17 comma 2 by root 17 -3 by root 17 चेक द आंसर क्या दिया हुआ है पहला दिया हुआ है उन्होंने ये दिया हुआ -2 by root 17 -2 by root 17 और 3 by root 17 अब for side BC आप वेक्टर BC निकालो ठीक है लाइन के दो डायरेक्शन होते हैं तो AB भी हो सकता है BA भी हो सकता है सो वेक्टर BC C minus B वो कितना आएगा -5 plus 1 -4 -5 -1 -6 -2 so -2 ही आया so mod of BC निकालो आप mod of BC वेक्टर निकालो ठीक है mod of BC वेक्टर निकालना है therefore mod of वेक्टर BC स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा -4 का स्क्वायर 16 plus 6 square 36 plus 16 square but 68 okay lucky so 2 root 17 सीधा so modulus of BC magnitude of BC vector is 2 root 17 is equal to 2 into square root of 17 और vector BC मतलब vector BC C minus नहीं करना है -5 so -4 है -6 और फिर है -4 तो डायरेक्शन कोसाइंस पहला डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड मतलब एक्चुअली लाइन BC वो क्या आएगा अच्छे तरीके से खत्म करो x कोऑर्डिनेट अपॉन उसका मैग्नीट्यूड y कोऑर्डिनेट अपॉन उसका मैग्नीट्यूड ओके तो x कोऑर्डिनेट क्या है -4 अपॉन 2 रूट 17 -6 अपॉन 2 रूट 17 और -4 अपॉन 2 रूट 17 you know you can get it आप देखो मैं तीनों कर रहा हूं ताकि आपको 3 बार ये आ जाए सो -2 अपॉन रूट 17 -3 अपॉन रूट 17 और ये आएगा -2 अपॉन रूट 17 तीनों नेगेटिव यस पर लाइन के दो अपोजिट डायरेक्शंस होते हैं लाइन हैज टू डायरेक्शंस तो सेकंड सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन BC विल बी ये तीनों पे अपोजिट ओके तो आपने देखा AB BC और C ऐसे वो फॉर्म करते हैं तीनों के अपोजिट कितने आएंगे 2 by root 17 कॉमा 3 by root 17 कॉमा 2 by root 17 ओके और अब फॉर साइड CA
AB, BC और CA ऐसे कंसीडर करो। So what side CA, वेक्टर CA निकालो, वेक्टर CA निकालो। CA मतलब क्या होगा, CA will be what, CA will be polyvector of A minus polyvector of C. So 3 minus 1 minus, so 8 3 minus 1 minus 5 is 8, 5 plus 5 10, okay, minus 4 plus 2 minus 2, okay, इसमें थोड़ा अलग आ रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा अलग आएगा। सो अंडरस्टूड, हमने डायरेक्शन कोसाइंस निकाले, इसके हमने डायरेक्शन कोसाइंस निकाले ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो आपको पता चल गया कि थियरी अगर आपको अच्छे तरीके से आती है तो ये थियरी स्ट्रेट लाइंस की बहुत इजी है। और वेक्टर अलजेब्रा के सारे कैलकुलेशंस आपको आने चाहिए। 8 स्क्वायर 64, 10 स्क्वायर 100 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 168। 168 divided by 42, it's 42 into 4, so this has to be 42 into 4, so it is square root of 4 into 42. So mod of CA will be 2 root 42, directly so square root of 4 into 42 मतलब 2 root 42। और हाँ, आप लोग वेक्टर CA कितना है, -8 10 minus 2, so direct first direction cosines of line CA will be, अब डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का, तो CA है हमारे पास, तो x कोऑर्डिनेट अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, y कोऑर्डिनेट अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, डोंट राइट अल्फा बीटा गामा, डायरेक्टली आपको करना है। तो सीधा आंसर क्या आएगा, 8 अपॉन 2 into square root of 42 comma 10 upon 2 root 42 और minus 2 upon root 42 कैंसिल कर दो। 4 upon root 42 comma 5 upon root 42 comma minus 2 upon square root of 42, let me check, sorry 2 root 42 है। So you saw they have kept AB, BC और CA भी रखा है उन्होंने। तो सेकंड सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन CA, सेकंड सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन CA आर, सेकंड सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन CA कितना आएगा, सेकंड सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन CA, इसका अपोजिट कर दो, -4 upon root 42 -5 upon root 42 और तीसरा है +1 upon square root of 42 finished। Now question number 4 is remaining the okay, I can easily finish off question number 4 और question number 4 जैसा ही एक एग्जांपल है तो वो मैं खत्म कर दूंगा। So this can be a very nice question for 2 marks, जो question number 4 है। बाकी सारे questions can come for 2 marks, अभी जो क्वेश्चन सोल्व किया that can come for 3 marks or 2 marks, okay, और कोई भी एक डायरेक्शन को साइन पूछते हैं तो 1 mark। now question number 4 क्या दिया हुआ है, show that the points are collinear, show that the points are collinear। now A is, let A you keep as 2 3 4, B you keep as -1 -2 1, C you keep as 5 8 7। और हाँ, आपको ये मेथड फॉलो करना है। अगर एमसीक्यू भी है कि द पॉइंट्स आर कोलिनियर, नॉट कोलिनियर, नन ऑफ दिस, अगर प्रूव दैट, कोई क्वेश्चन आता है कि अगर वी आर गेटिंग टू प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो पहले 3 पॉइंट्स का नाम दे दो A B C। कॉमन सेंस है, AB वेक्टर निकालो और वेक्टर AC निकालो। पहले आप वेक्टर AB निकालो, ओके, पहले आप वेक्टर AB निकालो। सो हियर वेक्टर AB क्या हो जाएगा, therefore वेक्टर AB will be वेक्टर AB, पहले आप वेक्टर AB निकालो। वेक्टर AB क्या होगा, पोजीशन होगी माइनस क्वेश्चन को डायरेक्टली -1 -2 is -3 -2 -3 is
-5 and 1 minus 4 is -3. Therefore, direction of line AB I can take is equal to vector AB which is -3, -5, -3. तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? Can you recollect? Direction ratios of line AB क्या है? x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. So direction ratios of line AB कितने होंगे? इक्वल टू -3, -5, -3. अब आप वेक्टर AC निकालो, AC निकालो या BC निकालो, योर चॉइस. लेट मी सी दिस एग्जांपल नंबर ओके BC निकाला है. नाउ here वेक्टर BC निकालो. So vector BC मतलब position vector C minus position vector A. So 5 plus 1 is 6, 5 minus 2 minus 1 5, 8 minus 2 minus so 10 and then 7 minus 1 is 6. तो ये हो गया वेक्टर BC. वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम B to C. तो डायरेक्शन ऑफ लाइन BC क्या है? डायरेक्शन ऑफ लाइन BC. दोनों लाइन के बहुत सारे डायरेक्शन. एक्चुअली a line has only two directions. पर एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं. तो one of the possible directions, so direction of line BC is one of the directions is BC vector which I can take as 6, 10, 6. So direction ratios of line BC क्या है? 6, 10, 6. अब आप ध्यान से देखो कि जब भी आपको प्रूव करना है कि टू लाइंस आर, अगर आपको प्रूव करना है कि द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो पहले AB और BC कोई भी दो पोजीशन वेक्टर निकालो, AB निकाला, BC निकाला. फिर आप डायरेक्शन रेशियोज का इसके डायरेक्शन रेशियो को उसके डायरेक्शन रेशियोज को डिवाइड करके देखो. 6 upon -3 here 6 upon -3 is 6 upon -3 कितना आएगा? -2. 10 upon -5 -2 और 6 upon -3 is -2. So directly okay 6 upon -3 is equal to 10 upon -5 is equal to 6 upon -3 which is -2. So can I say direction ratios are proportional to each other? इधर दोनों के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हैं. जब भी डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं तो आपको याद रखना है कि these two lines therefore इनका डायरेक्शन सेम होगा. So here the direction ratios are proportional. So the direction ratios are proportional. Therefore direction ratios of line AB and BC are proportional. ओके प्रोपोर्शनल हो गए. उसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब आपको याद रखना है कि जब प्रोपोर्शनल होंगे तो ये दो लाइंस या तो पैरेलल होंगी. सो आइदर दिस टू लाइंस विल बी पैरेलल और दिस टू लाइंस विल बी इक्वल. ये आपको याद रखना है कि जब डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं, जब भी डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं तब हम क्या बताएंगे कि डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल. इधर डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल. उसका मतलब ये क्या होगा? टू बी प्रिसाइज ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं. ये वेक्टर BC और वेक्टर CA अपोजिट डायरेक्शन में हैं. अगर आपको याद है x1 = a by bar. ओके सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि either they are parallel. If the direction ratios of two lines are proportional then they are parallel or they are equal. But here point of intersection क्या है? Point of intersection is B. So AB parallel to BC is false. उसका मतलब AB इक्वल क्या हो गया? AB is equal to BC हो गया. AB like AB is equal to line BC हो गया. उसका मतलब क्या? उसका मतलब line AB is equal to line BC हो गया. उसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं. So line AB is equal to line BC. So therefore A, B, C are collinear. They are collinear. Same way, आपको याद रखना है कि if direction ratios of two lines, suppose direction ratios of two lines मुझे ये दो आपको स्टार्टिंग में देना चाहिए था. ये आपको याद रखना है. Here no
नोट याद रखो कि सपोज डायरेक्शन ए, डायरेक्शन ratios of lines L and M are proportional, then क्या हो सकता है, ये दोनों लाइंस है तो पैरेलल होंगी, then L is parallel to M or L is equal to, the two lines will be parallel or the two lines will be coincident. ये आपको याद रखना है। सेम लॉजिक से आप एग्जांपल नंबर 5 कर सकते हो। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो कोलिनियर बताने हैं सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि पहले वेक्टर AB निकालो, फिर वेक्टर BC निकालो, फिर डायरेक्शन रेशियोज आपको पता चल जाएंगे। फिर सो व्हाट यू डू हियर ABC कितना है, ABC, so that we have finished exercise 11.1 is over. See, it's very easy. Just 1 minute. Let me see if I can solve one more question. Yes, I can solve. So, example number 5. A कितना है? Here, A is here. Okay, here A कितना है? Example number 5 में here A is given as 2, 3 minus 4, 2, 3 minus 4. B is given as 1 minus 2, 3. Be very careful while writing. 3, 8 minus 11. तो आप सीधा वेक्टर AB निकालो. Vector AB will be B minus C. Position vector of B minus position vector of A. Sorry, AB will be vector AB will be position vector of B minus position vector of A. 1 minus 2 minus 1 minus 2 minus 3 is minus 5 और दूसरा है 3 plus 4 7. तो डायरेक्शन ऑफ लाइन AB will be plus or minus AB होता है vector AB, that is how much, minus 1 minus 5 7 minus 1 minus 5 7. तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AB क्या है, -1 -5 7. अब वैसे ही आप वेक्टर BC निकालो, तो वेक्टर BC का क्या आएगा, वेक्टर BC, अब ध्यान से देखो, so therefore here BC will be position vector of C minus position vector of B. So 3 minus 1 is 2, 8 plus 2 is 10, 8 minus 1 minus 2 is plus 1, and minus 11 minus 3, so minus 14. So therefore direction of line BC को क्या हो जाएगा, वेक्टर BC को कितना आएगा, 2 10 minus 14. 2 10 minus 14 is 2, 10, minus 14. डायरेक्शन रेशियोज आपको मिल गए, डायरेक्शन रेशियोज therefore डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन BC वो क्या मिला, वो हो जाएंगे 2 10 minus 14. अब आप ध्यान से देखो कि अगर आप डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB और BC हैं तो वो प्रोपोर्शनल है, अगर आप ध्यान से देखो, और हाँ यहाँ पे गलत लिखा है, सेपरेटेड बाय कॉमा आना चाहिए, ठीक है, नॉट एज अ वेक्टर, सो ये आना चाहिए 2 10 minus 14, 2 10 minus 14. So here अगर आप ध्यान से देखोगे 2 upon minus 1 is minus 2, फिर 10 upon minus 5 is minus 2, minus 14 upon 7 is minus 2. So therefore we can say the direction ratios of line AB and line AC are proportional. और जब भी direction ratios of two lines proportional तो वो lines या तो parallel या equal. So that you can write 2 upon minus 1 is equal to 10 upon minus 5 is equal to minus 14 upon 7 is minus 2. So direction ratios of line AB
and line BC are proportional. See, वेक्टर में आपकी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. You see the way I am writing. वेक्टर एरी में रे होता है, लाइन के ऊपर दो एरो होते हैं. Be very very careful. कुछ भी अजीब वगैरह मत लिखना. So therefore, या तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी या कोइंसिडेंट मतलब इक्वल होंगी. पर पैरेलल लाइंस में एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता है. तो हियर AB और BC का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? हियर AB और BC का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? लाइन AB इंटरसेक्ट BC एट B. उसका मतलब AB पैरेलल टू BC इज false. उसका मतलब क्या? AB पैरेलल टू BC इज false. So AB parallel to BC is false. So therefore AB parallel to BC is false या not true. So therefore खाली AB equal to BC हो जाएगा. उसका मतलब लाइन AB equally है. Okay, so therefore ABC are linear. So ABC are linear. ABC are linear. So we can write therefore the points ABC are linear. Therefore ABC are linear. Simple. Just a minute. Let me see if I can make one small example. If the time is permitting, we have done example number. Okay. We have done example number 2. We have done example number 5. So अब आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 4 भी आप खत्म कर सकते हो. योर चॉइस. एग्जांपल नंबर 4 तो बहुत इजी है. एक्स एक्सिस के बारे में जो मैंने आपको नॉलेज दिया था वही आपको काम लगेगा. मैंने पहले लेक्चर में पूरा नॉलेज आपको दिया है. ओके, सो नाउ फाइंड एग्जांपल 1. Example 1, 4 and okay, example 1 कर लेते हैं. Can finish. कितना दिया हुआ है? If the line is taking, okay, let alpha, beta, gamma be direction angles of line L. ऐसा तो याद रखना है. Of line L. तो अल्फा इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द एक्स एक्सिस. तो अल्फा हो जाएगा 90 डिग्री. बीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द वाई एक्सिस व्हिच इज 60 डिग्री. एंड गामा विल बी द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द पॉजिटिव z एक्सिस व्हिच इज 30 डिग्री. सो अल्फा कितना आया? π/2. बीटा कितना आया? π/3 और गामा 30 डिग्री मतलब π/6. ओके, हियर आप लिख लो alpha, beta, gamma belong to closed 0 to pi. Okay. Try to solve in the way I am doing. It will be very very helpful to you. Alpha, beta, gamma दिया हुआ है. तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगी? cos alpha, cos beta, cos gamma. Finish. और सेकंड आंसर भी उसके अपोजिट में लिख देने का. दो साइड माइनस करो. डायरेक्टली आपको आंसर लिख देने का. So डायरेक्शन कोसाइंस. Therefore डायरेक्शन फर्स्ट. Set direction cosines of L कितने होंगे? cos alpha, cos beta, cos gamma. So that will be cos of π/2, cos of π/3 and cos of π/6. Now what is cos π/2? Cos π/2 is 0 cos. So 0 comma cos π/6 is cos 60 is sin 30 half. So it will be half and this will be √3/2. अगर आपको वैल्यूज नहीं आती है देन यू आर रॉन्ग. सेकंड में आप लिख सकते हो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L. सीधा अपोजिट में तो इसका आंसर 0 का अपोजिट 0 माइनस 1/2 माइनस √3/2. व्हाट आंसर देगा गिवन? Here given yes 0 half and √3/2. 0 half √3/2. फिर अगर एग्जांपल 3 देखते हो तो उसमें दो पॉइंट्स दिए. तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. पहले को A रखो, दूसरे को B रखो. पहले को A रखो, दूसरे को B. फिर डायरेक्शन ऑफ लाइन AB वो क्या है? वेक्टर AB वो निकालो.
फिर mod of AB निकालो और फिर आपको पता है कि x कोऑर्डिनेट, डोंट रिमेंबर x2 - x1 ऑल दैट स्टफ। अगर आप बेसिक थियरी लिखते जाओगे तो फिर बहुत जल्दी हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 3 आल्सो इफ टाइम परमिट्स, यस वी कैन फिनिश। क्या हो जाएगा, उसका रिवीजन हो जाएगा। ओके, find the direction cosine of the line passing through two distinct points. So let A आपका को -2, 4, -5, B you keep as 1, 2, 3. तो सीधा आप लिखो वेक्टर AB will be 1, 2, 3. Which vector of B minus which vector of A? -2, 4, -5. सब्जेक्टिव में अगर ये 2 मार्क में आता है तो ऐसा लिखो, इट्स एक्सीलेंट। 1 plus 2, 3, 2 minus 4 is -2, 3 plus 5 8, fine। काफी अच्छे नहीं लिखते हैं, and also it is fine। So magnitude of AB is direct for AB 3 minus 2 8 and 3 square 9, 2 square minus 2 square 4 plus 8 square 64, so 68। So it is how much? 68 plus 9 square root of 75, square root of 75 which is 25 3s are, so 5 root 3। So mod of AB vector is 5 root 3। mod of AB vector is 5 root 3 और AB vector कितना था? AB vector कितना था? 3 minus 2 and 8, 3 minus 2 8, 3 minus 2 8। तो अब ऐसे थ्योरी करने के बजाय आप A लिखो, फिर B लिखो, फिर therefore AB वेक्टर निकालो, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ AB निकाल लेगा, फिर सीधा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन AB, सीधा याद रखने का डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन AB क्या है? x कोऑर्डिनेट अपॉन पहला आंसर, and you give both the answers so the teacher will be happy। So direction cosines of line AB वो कितने आएंगे? पहला होगा उसका x कोऑर्डिनेट 3/5 √3 कॉमा √75 क्या बोले? ओह 60 plus 9 77 √77, so it is √77। You see the calculation mistake, so 3 upon √77, then -2 upon √77, and the last one is 8 upon √77, and then you write second set direction cosines of line AB। second will be इसका opposite, reversing। So because the line has two directions, the teacher will understand, and even if you not at the theoretical point of the formula and all that, your marks will not be cut। second will be 2 upon square root of 77, the third will be -8 upon square root of 77। finish, because the line has two directions, because line AB has two directions। finished, we write two answers, इसका दोनों निकालो, half mark and then 1 mark। 2 mark question है, you will do this way, no teacher will give you wrong, you will get 2 marks। So that finishes exercise 11.1 and all the examples before exercise 11.1। I believe आपको यहाँ तक मैंने सिखाया, उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, बहुत इजीली और बहुत इफेक्टिवली बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया है, और मैंने सेम टाइप ऑफ एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशन डिटेल में लिख दिए हैं। तो अब इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ट्राई टू फिनिश ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा विद simultaneously doing the 3D chapter। That's for today। Thank you, work hard, take care, don't waste your time।